آج ہم نیکسٹ سیشن پڑھیںگے دیٹ از اباؤٹ فیڈس. ٹھیک ہے. فیڈس کے اندر دو طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں. یا تو اس میں ہسٹری آتی ہے کہ اس کی ہسٹری ٹیکنگ کیا ہے، یا اس کی کچھ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کیسز آتی ہے. لیکن ہسٹری ٹیکنگ ان فیڈس میڈیسن میں اور اس کی ہسٹری میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ تو ہم نے پڑھی ہے. اب فیڈس کے اندر جو ہسٹری ہے وہ ہم نے لینی ہے. ٹھیک ہے. ایگزامینر آپ کو بتائے گا کہ جناب ایک پیرنٹ ہے، ماں ہے یا باپ ہے، اس نے بچے کو لایا ہے کسی کمپلینٹ کے ساتھ، اور آپ نے پھر اس سے کیا لینا ہے؟ ہسٹری لینا ہے. سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ وہی سیم کرنا ہے، سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. دس از کالڈ گریٹنگ. تم کیا کہتے ہیں؟ گریٹنگ. پھر وہ ہمیں رسپانس دے گی وعلیکم السلام کی شکل میں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. دیٹ از رسپانس. پھر آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے کہ میرا نام ڈاکٹر صادق ہے. آپ لوگ اپنا نام لکھیں. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا. پھر آپ کو کہے کہ آپ کے بچے کا نام. کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہسٹری لینی ہے بچے کی. ٹھیک ہے. پیٹ کے اندر اب ایک ماں ہے 2 سال یا 3 سال کا، اس کے پاس بچہ ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے، اس کے ہم نے کچھ چیزیں پوچھنی ہے، تو ہم نے اس کے بتانا ہے کہ آپ کے بچے کا نام. وہ کہتے ہیں کہ علی. پھر اس کی بایو ڈیٹا پوچھنا ہے کہ اس کا عمر کتنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1، اس کی عمر کتنی ہے، علی اور اس کی عمر. بس یہ دو چیزیں ہیں. جب ہم میڈیسن میں ہسٹری لیتے تھے تو بایو ڈیٹا میں 5 چیزیں پوچھتے تھے. نمبر 1، نیم، ایج. ٹھیک ہے. پھر پیشنٹ ڈیٹ آف برتھ پوچھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس میں پروفیشن بھی پوچھتے تھے، اس میں میرائٹل اسٹیٹس بھی پوچھتے تھے، اور اس میں ہم ریزیڈنس بھی پوچھتے تھے. یہ 5 چیزیں ہیں. لیکن یہاں پہ پروفیشن بھی نہیں ہے، کیونکہ بچہ ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے. میرٹل اسٹیٹس وغیرہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ لے کے اس کی عمر بس آپ لوگوں نے یاد رکھنی. نام اور عمر، یہ دو چیزیں، اس کو کہتے ہیں بایو ڈیٹا. یہ پیشنٹ کی کیا ہے؟ بایو ڈیٹا. ہم نے پیشنٹ کی بایو ڈیٹا پوچھ لیا کہ بچے کی عمر کتنی ہے اور اس کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ اس سے یہ پوچھے کہ آج آپ ہسپتال بچے کو کس وجہ سے لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کہ آپ پیرنٹ سے یہ پوچھیں کہ آج آپ اسپتال اپنے بچے کو کس مسئلے سے لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب رات سے بچے کو پیچس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ڈائریا ہے. پیچس سے مراد ڈائریا ہے. بچوں کے اندر ڈائریا کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب رات سے بچے کو پیچس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک کمپلینٹ بتائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈائریکٹ اس کی ڈیٹیلز بتانی ہے. ڈفرینشیل ڈائگنوزس. بس اس میں او ڈی پارا وہ والی چیزیں نہیں دیکھتے. ڈفرینشیل ڈائگنوزس بتانی ہے. ڈفرینشیل ڈائگنوز کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ پیچس کے ساتھ بچے نے الٹی کی تھی کہ نہیں. یہ ہم پوچھیں گے کہ ڈائریا کے ساتھ ساتھ وومٹنگ ہے کہ نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں رات کو اس نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ وومٹ بھی کیا ہے، تو ڈائریا پلس وومٹنگ دیٹ از نون ایز وٹ؟ گیسٹرو اینٹیرائٹس. تو کیا کہتے ہیں؟ گیسٹرو اینٹیرائٹس. یہ بچوں کے اندر بہت کامن ہے. اس کا مطلب یہ ہے گیسٹرو اسٹینڈ فار stomach, enteritis mean intestine. Inflammation of the stomach and intestine both in a single patient that is called gastroenteritis. تو اگر stomach involved ہے تو اس کی وجہ سے بچے کو کیا ہو جائے گی؟ وومٹنگ، الٹیاں. اور انٹیرائٹس کین کاز ڈائریا. ٹھیک ہے. تو اگر پیچس کے ساتھ ڈائریا کے ساتھ بچے نے الٹیاں کی ہے تو پھر اٹ مے بی اے کیس آف گیسٹرو اینٹیرائٹس. بہت امپورٹنٹ ہے. پھر نیکسٹ یہاں پہ لے کے کہ پیچس کتنی
दफा हुई है। नंबर पूछना है, हुई है, और बच्चा बच्चा उसके बाद रो रहा था या सो गया। ये क्या पूछते हैं हम लोग ख्याल में? हम उसको ये बताते हैं कि जब बच्चे ने पेचिश की है डायरिया, उसके बाद वो सो गया था या रो रहा था। अगर वो रो रहा है इसका मतलब वो एक्टिव है, ठीक है, वो क्या है, एक्टिव है। अगर वो सो गया है इसका मतलब इतना डायरिया हुआ है कि इसकी फ्लूइड वॉल्यूम क्या है, कम है। इट इज साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। कि हम किस चीज़ के बारे में पूछते हैं, डिहाइड्रेशन, क्योंकि डायरिया कैन कॉज डिहाइड्रेशन। और अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो फ्लूइड लेवल जब बॉडी के अंदर कम हो जाए तो द बेबी विल बी वेरी वेरी फटीग, डिजीनेस। बच्चा लिथार्जी में चला जाता है, डिजीनेस में चला जाता है, और उसके बाद बच्चा ऐसा लगता है कि बस अभी वो सोने वाला है। दैट इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, और डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। फिर यहाँ पे लिखे कि रात को बच्चे ने क्या खाया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या खाया है, किसने डाइट पूछनी है, किसने खाया क्या है। अगर यहाँ पे लेके, अगर बच्चे ने नंबर वन दूध पिया है, ठीक है, या गंदम वाली ग़िज़ाएं खाई है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स ये कहे कि बच्चे को जब पेचेस पड़े थे इसकी वजह यह है कि इससे पहले इसने दूध पिया था, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। तुम क्या कहते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये नाम सुना है कि नहीं? दूध के अंदर लैक्टोज होता है, क्या होता है, लैक्टोज। इनसाइड द मिल्क वी हैव अ कार्बोहाइड्रेट नोन एज लैक्टोज। जब हम दूध लेते हैं या बच्चे को दूध पिलाते हैं उसके अंदर लैक्टोज होता है, और वो लैक्टोज इंटेस्टाइन के अंदर ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। लैक्टोज एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन से खुद नहीं होता। तो अगर फॉर एग्जांपल इसका देख थोड़ा सा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज इंटेस्टाइन, ये क्या चीज़ है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के इनसाइड पे इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, दे आर कॉल्ड इंटेस्टाइनल वेलाई। इसको क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल वेलाई, दीज आर इंटेस्टाइनल वेलाई। अब अगर कोई बंदा दूध ले ले तो दूध के अंदर क्या चीज़ पाया जाता है, लैक्टोज। अब लैक्टोज जो है ये इंटेस्टाइन से ब्लड में नहीं जा सकता क्योंकि इसलिए मॉलिक्यूल बड़ा है। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपल में कन्वर्ट करना है दो चीज़ों में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये याद रखें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो लैक्टोज जो है ना ये ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तो जो लोग दूध लेते हैं उसके अंदर उसको क्या मिलता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज इंटेस्टाइन के अंदर किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम होता है, और वो एंजाइम ये विलाय देती है। उस एंजाइम का नाम लैक्टेज है। क्या है, लैक्टेज। दूध के अंदर क्या होता है, लैक्टोज, लेकिन लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, लैक्टेज चाहिए। तो लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब यही ग्लूकोज गैलेक्टोज आसानी से फिर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब बाज बच्चों में क्या होता है, बाई बर्थ मतलब पैदाइशी तौर पर उन बच्चों की ये विलाय डैमेज होती है और इससे क्या चीज़ नहीं रिलीज होता, लैक्टेज। तो अगर वो बच्चे दूध पियेंगे तो उसमें तो लैक्टोज है, अब लैक्टोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो लैक्टोज ब्लड में जाएगा कि इंटेस्टाइन में रहेगा, और ये इंटेस्टाइन के अंदर जब रहेगा तो इंटेस्टाइन की सेल से वाटर ड्रा करेगा। क्या ड्रा करेगा, वाटर। और जब वाटर अपनी तरफ खींचेगा तो दैट वाटर विल गो इन द फॉर्म ऑफ डायरिया। उससे क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, यानी ऑस्मोटिक डायरिया हो जाता है। एग्जाम में आता है कि जो बच्चे पेचेस के हिस्ट्री में आते हैं स्पेशली माँ ये बताए कि उसने दूध पिया है, दूध के बाद उसका डायरिया हुआ है, दैट इज अ हॉल मार्क ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। और इन बच्चों में किस एंजाइम का डिफिशिएंसी है, लैक्टेज, जिसको लैक्टेज डिफिशिएंसी भी कहते हैं। और इन बच्चों को अगर हम मजीद दूध देंगे तो इसके अंदर लैक्टोज टॉलरेट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक क्या हो जाती है, डायरिया।
اس لیے इस कंडीशन का नाम लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी कभार कुछ बच्चों में जब हम उनको गंदम वाली गजा खिलाते हैं उससे भी उन लोगों को क्या हो जाता है, डायरिया। अगर डायरिया हो जाए किसी गंदम वाली या वीट कंटेनिंग डाइट से, इसको हम कहते हैं सीलियक डिजीज। क्या कहते हैं, सीलियक डिजीज। ये नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है कि जो वीट है, गंदम है, उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है ग्लाइडीन। क्या नाम है, या उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है ग्लूटन। ग्लूटन इज अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन वीट कंटेनिंग डाइट। और कुछ बच्चों के अंदर जो इंटेस्टाइन है वो क्या चीज एब्जॉर्ब नहीं करता, ग्लूटन। तो अगर वो गंदम वाली चीज खाएंगे उसमें ग्लूटन हो, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इंटेस्टाइन तक रहेगा और वो भी नियर बाई क्या करेगा, वाटर ड्रा करके ऑस्मोटिक क्या करेगा, डायरिया कराएगा। तो अगर आप लोग फीड्स के अंदर पास होना चाहते हैं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, if a baby takes milk and after milk ingestion the baby develop diarrhea, think about lactose intolerance। अगर एक बच्चा है उसको गंदम वाली चीज खिलाई गई है और उसके बाद उसको डायरिया हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑफ सीलियक डिजीज। और अगर एक बच्चा है उसको डायरिया हो जाए और डायरिया के साथ साथ वो वोमिटिंग भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेराइटिस। ये डायरिया के तीन काज है। द टॉप लिस्ट काजेस फॉर डायरिया इज थ्री। नंबर वन, सीलियक डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। क्लियर। कभी कभार वो कहते हैं कि उसको दूध भी नहीं पिलाया है, गंदम वाली चीज भी नहीं खिलाई है, कोई और ग़िज़ा खिलाई थी और इसके बाद उसको डायरिया हो जाए और फीवर भी है, तो फिर ये फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग। लेकिन वो बहुत कम केस में होता है। हिस्ट्री में अगर आप लोग सिर्फ ये तीन चीजें भी पूछेंगे ना, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली when we are taking the history of what, डायरिया। जब हम किसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, डायरिया। अगर बच्चे ने वोमिट की है, मतलब बच्चा है और उसने वोमिट की है, एग्जाम्पल उसने उल्टियाँ की है, तो उल्टियों के साथ हम पेचेस पूछ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम बताएंगे कि उसका पेट खराब तो नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस दोनों हो सकता है। ठीक है। फिर जिस बच्चे ने उल्टी की है, अभी रिसेंटली उसको खिलाया क्या है, डाइट क्या है, तो डाइट की वजह से भी उल्टी कर सकती है। या खाने के कितने टाइम बाद उसको उल्टी हुई है, अगर ज्यादा टाइम के बाद उल्टी हुई है इंटेस्टाइन का इशू हो सकता है, अगर कम टाइम के बाद उल्टियाँ हुई है तो फिर एसोफेगस या स्टमक का इशू हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम फीड्स में पूछते हैं। ठीक है। अब ये आप लोगों ने दो तीन चीजें पूछ लिए हैं जो एग्जामिनर इम्पोर्टेंट आप लोगों से सुनेगा, वो ये है। अब लेके बर्थ हिस्ट्री। द नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड बर्थ हिस्ट्री। इसके बाद हम पूछेंगे बर्थ हिस्ट्री। अब ये हम मेडिसिन में नहीं पूछते, लेकिन इधर फीड्स के अंदर जरूर पूछते हैं, व्हाट इज द बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री के अंदर लिखे प्रीनेटल हिस्ट्री। प्रीनेटल से मुराद क्या है, बिफोर द बर्थ, मतलब जब फीटस स्टिल इन द यूट्रस, उसकी जो हिस्ट्री है वो क्या कहलाता है, प्रीनेटल हिस्ट्री। उसमें लेके माँ से हमल के दौरान, प्रेगनेंसी को कहते हैं। आपने शुगर की थी। नंबर टू, हमल के दौरान आपने ब्लड प्रेशर चेक की थी। हमल के दौरान आपने अद्वियात का इस्तेमाल किया है क्या नहीं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थी। ठीक है। ये प्रीनेटल हिस्ट्री है। देखिए अगर माँ डायबिटिक है, उसने शुगर अपना टेस्ट नहीं किया है, तो हाई शुगर कैन अफेक्ट द फीटस आर नॉट। जो बच्चा होगा वो हाई ब्लड शुगर से वो मैक्रोसोमिया हो जाता है, बड़ा हो जाता है और उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर है माँ को प्रेगनेंसी में, तो हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द फीटस। ये हमने पूछना है कि जो बच्चा उसने लाया है उसकी जो मसला है वो तो माँ की तरफ से नहीं हुआ है, या कुछ ड्रग ऐसे है कि वो प्रेगनेंसी में यूज होती है और वो प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे को डैमेज कराती है। तो हमने बर्थ हिस्ट्री के अंदर प्रीनेटल हिस्ट्री पूछनी है। बिफोर द बर्थ माँ से पूछना है कि आपने अपने प्रेगनेंसी के दौरान शुगर टेस्ट किया था क्या नहीं। अगर वो कहे कि हाँ जब मैं हमल के दौरान मैंने शुगर टेस्ट करवाया था, तो उसको फिर कहना है कि आपकी शुगर कितनी थी,
अगर उसको याद नहीं है तो उसको कहो कि जो शुगर के टेस्ट है वो आपके साथ जो पड़े हुए हैं घर में वो कल लेके आए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि जो मदर है वो डायबिटिक है कि नहीं है। अगर बीपी उसने चेक की है तो उससे ये पूछना है कि आपकी ब्लड प्रेशर कितनी थी। तो हमने अभी रिसेंटली गायनी के अंदर ये पढ़ा था, प्री क्लाम्शिया, ई क्लाम्शिया, ये कंडीशन हो सकती है कि नहीं, दैट कैन अफेक्ट द फीटस, और इसमें कुछ अद्वियात इस्तेमाल किए हैं कि नहीं। तो अगर कुछ अद्वियात उसने ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि वो प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे को अफेक्ट कर चुके हैं, तो उसके आने वाले बच्चे में इम्यूनिटी फिर कम होगी कि नहीं। तो हम ये भी ड्रग पूछते हैं। फिर इसके बाद देखिए नेटल हिस्ट्री। प्री नेटल के बाद नेटल हिस्ट्री है। नेटल मीन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब बच्चा नॉर्मल या ऑपरेशन से पैदा हुआ है, ये हम पूछते हैं। क्लियर। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो नॉर्मल पैदा हुआ था या ऑपरेशन से। नॉर्मल से मुराद ये है एसवीडी या मतलब एनवीडी, क्या एनवीडी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। एनवीडी स्टैंड फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। क्लियर। ऑपरेशन से मुराद ये है, अगर वो कहते हैं कि मेरा बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ है, तो फिर दो सवालात करने के, छोटे ऑपरेशन से या बड़े ऑपरेशन से। छोटा ऑपरेशन एपिजियोटमी है और बड़ा ऑपरेशन सी सेक्शन है। ठीक है। हमने मोड ऑफ डिलीवरी बताना है कि इसकी मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, आया नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है या सी सेक्शन है या मतलब एपिजियोटमी है। तो अगर वो कहते हैं कि इसकी बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ है, फिर जरूर पूछना है छोटे ऑपरेशन से या बड़े ऑपरेशन से। तो छोटे ऑपरेशन से मुराद क्या है, एपिजियोटमी है, और बड़े ऑपरेशन से मुराद सेक्शन है। ठीक है, ये हम पूछते हैं। ये नेटल हिस्ट्री है। फिर लेके पोस्ट नेटल हिस्ट्री। पोस्ट नेटल मीन जब बच्चा पैदा हो जाए। पोस्ट नेटल हिस्ट्री, इसमें यह बताना है कि पैदाइश के बाद बच्चे की रंगत कैसी थी। ये क्या पूछते हैं, मतलब व्हाट इज द कलर ऑफ द बेबी आफ्टर द बर्थ। अगर वो पिंक था, पिंक, पिंक मीन कि उसके अंदर ऑक्सी ब्लड ज्यादा है। कुछ बच्चे होते हैं वो बाई बर्थ ब्लू होते हैं, क्या होते हैं, ब्लू, इसको साइनोस बेबी कहते हैं। और ब्लूइश बेबी का मतलब यह है कि उसमें डीऑक्सी ब्लड क्या है, बहुत ज्यादा है। हमारे बॉडी को कौन सी ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड। अगर ऑक्सी ब्लड है बच्चे के अंदर तो उसकी पूरी बॉडी पिंक नजर आएगी। लेकिन अगर बच्चे के अंदर डीऑक्सी ब्लड ज्यादा है तो उसकी बॉडी क्या नजर आएगी, ब्लू नजर आएगी। हमने ये बताना है कि बच्चे की रंगत कैसी थी। फिर ये भी बताना है कि पैदाइश के बाद कितने कितनी देर के बाद बच्चा रोया था। ठीक है, ये भी पूछना है कि कितनी देर के बाद बच्चा फिर रोया था, क्योंकि फर्स्ट क्राई इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन। अगर वो कहते हैं कि बच्चे को रोने में टाइम लगा है तो इसका मतलब कि इसके लंग्स और हार्ट सही तरीके से नहीं बने हैं। जो बच्चा पैदा हो जाए और पैदाइश के बाद वो फर्स्ट क्राई करे, ये क्राई का मतलब ये है कि इसके लंग क्या हो गए, एक्सपांशन हो गए। क्योंकि बिफोर द बर्थ लंग्स आर कोलैप्स, बर्थ से पहले लंग्स क्या होते हैं, कोलैप्स। और जब बच्चा पैदा हो जाए और उसकी लंग्स क्या हो जाए, एक्सपांड, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से देयर विल बी फर्स्ट क्राई। तो फर्स्ट क्राई जो है ना, ये हमारे पास ये गुड साइन है कि बैड साइन है, ये गुड साइन है। फर्स्ट क्राई आफ्टर द बर्थ इज अ गुड साइन। जितना वो जल्दी क्राई करे इतना गुड है, जितना वो डिले करे इतना बैड है। अगर एक बच्चा है वो क्राई ना करे तो देखिए, अगर ये मार कर दे कि ये बच्चा है, इसको इस तरह हाथ पे रखते हैं और इसकी जो बैक साइड है उसको थोड़ा सा टेप करते हैं, या बैक करते हैं इसकी बटक्स को टेप करते हैं। इसलिए टेप करते हैं ताकि बच्चे में कोई एक्सपीरिएशन वगैरह है या इम्यूनिटिक फ्लूइड है वो भी निकले और बच्चा फर्स्ट क्राई कर सके। क्लियर है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट प्री नेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल। ये हमारे पास तीनों हेडिंग्स किसके अंदर आते हैं, बर्थ हिस्ट्री के अंदर आते हैं। ये पीड्स के अंदर पूछते हैं, मेडिसिन में ये नहीं पूछते। इसके बाद देखें द नेक्स्ट वी विल आस्क अबाउट बर्थ हिस्ट्री के बाद द नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। तो हेडिंग दे दे इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री भी पूछते हैं। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। ओके। पैदाइश के बाद
بچے کو حفاظتی ٹیکے لگوائے تھے کہ نہیں، یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو ہم بی سی جی ویکسین، پولیو ویکسین، ہیپاٹائٹس وائرس ویکسین یہ لگاتے کہ نہیں؟ تو کہیں گے کہ ہاں، اگر اس کے بازو پہ نشان ہے، یہ ٹی بی کا ویکسین ہے، کون سا؟ ٹی بی، اس کو ہم کہتے ہیں بی سی جی ویکسین۔ تو یہاں پہ ہم سیکیوز یاد رکھے، وہ پوچھتے ہیں کہ بی سی جی ویکسین از ڈن فار ٹو پریونٹ وچ کنڈیشن؟ ٹی بی۔ ٹیوبرکلوسس کے لیے جو برتھ کے بعد ویکسین دیا جاتا ہے وہ بی سی جی ویکسین۔ خیر، اگر وہ کہے کہ ہاں مطلب یہ ہے کہ بچے کو حفاظتی ٹیکے لگوائے تھے، تو آپ یہ بتائیں کہ کبھی نوٹ کیا ہے کہ بچے کے بازو پہ نشان ہو؟ بازو پہ نشان سے مراد ان بچے کو کون سا ویکسین لگائے ہے؟ بی سی جی، اینڈ دیٹ از پریونٹ آف ٹیوبرکلوسس، یہ ٹی بی کو پریونٹ کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس امیونائزیشن ہے۔ اس کے بعد لکھے فیڈنگ ہسٹری۔ نیکسٹ از فیڈنگ ہسٹری۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے دیٹ از کالڈ آف فیڈنگ ہسٹری۔ فیڈنگ ہسٹری کے اندر آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں مطلب بچے کو آپ بچہ ماں کا یا اپنی ماں کا دودھ پی رہے یا جب بھی والا، مطلب کچھ اگزامپل یا اس طرح گائے وغیرہ، مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں جس کی ماں کے ہاں باہر کا بھی آپ بتا سکتے ہیں، باہر کا مطلب فارمولا ملک بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے، یا باہر کا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دس پوائنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اگر بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے تو اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی، کیونکہ جو یہاں پہ ایگزام میں کوشچن آتا ہے کہ جو ماں فرسٹ ٹائم بچے کو دودھ پلاتی ہے تو فرسٹ ٹائم ملک گیون بائی دا مدر ٹو دا فیٹس از کالڈ کولوسٹرم۔ کیا کہتے ہیں؟ کولوسٹرم۔ Colostrum is the first time milk that is fed by the mother to the baby. And colostrum is a rich antibody. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ rich antibody. ایگزامینر آپ لوگوں سے وائوا میں یہ پوچھے کہ colostrum کے اندر جو rich antibody ہے وہ کیا ہے؟ that is called of IgA. So colostrum is the first time milk that is fed by the mother to the baby and it contains rich antibody and that is IgA. اور یہی کولوسٹرم ہی ہے جو بچے کی امیونٹی کو اسٹرانگ بناتی ہے۔ کلیئر ہے؟ دس ویری ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیں، بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، یہ باہر کا پورا ہے، اگر باہر کا ہے تو پھر کس چیز کا پی رہا ہے؟ پھر ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ پھر ڈفرینشیٹ کرنے کہ فارمولا ملک ہے، ڈبی والا ہے یا گایوں والا ہے، یہ ہم نے پھر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہاں پہ وائوا کوشچن ہے کہ جو بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں یا باہر کا، اس میں کیا فرق ہے؟ جو ماں کی دودھ ہے وہ رچ اینٹی باڈی ہے، جو باہر والا دودھ ہے وہ اینٹی باڈی رچ نہیں ہے۔ پھر ماں کی دودھ سے الرجی ریئیکشن کم ہوتے ہیں اور باہر کے دودھ سے الرجک ریئیکشن زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ، جو ماں کا دودھ ہے اٹ از نیوٹرین فل، یہ نیوٹریشن فل ہے، لیکن باہر کا دودھ نیوٹرین فل نہیں ہوتی۔ اور جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس سے آٹومیٹکلی ماں اور بچے کی ایک بانڈ بنتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے ماں کی طرف زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ So there is a natural bond between mother and baby. ٹھیک ہے، those mother who are giving their breast milk to the baby. لیکن جو باہر کے دودھ میں جناب بچے کو یا کوئی اور پلائے یا باہر سے پلائے تو اس میں ماں اور بچے کی جو ایک نیچرل بانڈ ہے وہ پھر نہیں بنتی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پوچھنا ہے۔ پھر اگر فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ماں نے اس کو اپنی دودھ پلائی تھی تو پھر لے کے بچے نے کتنے وقت دودھ دیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے کتنے وقت کے لیے دودھ دیا تھا، 3 منتھ، 4 منتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ جو اسینشیل ٹائم ہے وہ 6 منتھ ہے۔ کتنا ہے؟ 6 منتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ 6 منتھ the mother should feed the baby for the good immunity۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو ماں نے تو دودھ دی ہے 1 منتھ کے لیے، 2 منتھ کے لیے، ہم ڈیوریشن بھی پوچھتے ہیں۔ تو دس واٹ آل اباؤٹ دی فیڈنگ ہسٹری، یہ ہم فیڈنگ
देखिए यही चीज है जो आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है, दिस नॉट प्रेजेंट इन मेडिसिन बट दीज आर द क्लिक फॉर द किड। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कौन सा हिस्ट्री देख लिया है, अब दैट इज कॉल्ड बर्थ हिस्ट्री। इसमें प्री नेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल। इसके बाद इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री है, और इसके बाद क्या है, फीडिंग हिस्ट्री। फीडिंग हिस्ट्री के बाद लिखे डाइट इंटेक, डाइटरी हिस्ट्री। डाइटरी हिस्ट्री के अंदर बच्चे की ग़िज़ा कौन सी है, आप बच्चे को अमूमन तौर पर क्या खिलाते हैं, ये लिखे इसके अंदर, बच्चे को अमूमन तौर पर रोज़ाना क्या खिलाते हैं, इसकी डाइट हिस्ट्री क्या है, मतलब वो फ्लूइड ज़्यादा ले रहा है, सॉलिड चीज़ ज़्यादा ले रही है। ठीक है, तो आप नीचे लेके बच्चे को रोज़ाना कौन सी ग़िज़ा खिलाई जाती है। ठीक है, बच्चे को अमूमन रोज़ाना कौन सी ग़िज़ा खिलाई जाती है, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द डाइटरी हिस्ट्री। फिर वो बताएंगे कि हम बच्चे को ये खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, ये आप लोगों ने डाइटरी हिस्ट्री बताई है। ठीक है, फिर आखिर में लिखे फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में आपने दो चीज़ें पूछने हैं। अब ये हिस्ट्री हम बच्चे से ले रहे हैं कि उसके पेरेंट से ले रहे हैं, पेरेंट से ले रहे हैं। तो आपके और कितने बच्चे हैं, ठीक है, इसमें से किसी को पैदाइशी बीमारी तो नहीं, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछे कि टोटल आपके कितने बच्चे हैं, फिर उन बच्चों में से किसी को कंजेनिटल बाई बर्थ कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, बस ये आप लोगों ने दो तीन चीज़ें पूछते हैं। और आखिर में लिखे सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, इसमें लिखे आप लोग कितने घर में रहते हैं। अगर ये सेंटेंस नहीं बोलना है तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि आप लोगों का घर बंद है कि हवादार है। हवादार से मुराद ये है कि घर बड़ा है, बंद से मुराद ये है कि घर छोटा है। तो आप लोगों का घर हवादार है या नहीं, या आप लोग कितने घर में रहते हैं, आप लोग कितने घर में रहते हैं, तो इसका मतलब कि कितना घर है जो आप लोग उसमें रहते हैं। ठीक है, या आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि आप लोग के घर में कितने कमरे हैं। ठीक है, वो कहेगा 2 कमरे, 3 कमरे, और फिर ये बताना है कि हवादार है कि नहीं। अगर वो हवादार है, उसमें वेंटिलेशन है, तो उसकी घर क्या है, बड़ी है। अगर हवादार नहीं है तो घर छोटा है। क्लियर, इसका वजह यह है कभी कभार अगर बच्चे ज़्यादा एक जगह पर रहते हैं तो कंटाजियस डिजीज ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सम डिजीज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो तब होते हैं जब उसकी कंटेक्ट बहुत क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो हम कंजेशन हिस्ट्री ज़रूर पूछते हैं। तो ये हमने जनाब पूछ लिया। ठीक है, घर के बारे में, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये हमें गुर्बत के बारे में बताते हैं, इन लोगों में गुर्बत की रेशो कितनी है। मतलब अगर इस बच्चे को फ्लू है तो फ्लू का मतलब घर में किसी और को भी हो सकता है, क्योंकि फ्लू एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है। तो आपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जरूर पूछना है, और इसके बाद बस शुक्रिया अदा करना है कि आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ स्पीड्स के अंदर आप लोगों को आनी चाहिए, लेकिन जो अब मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ, आप हिस्ट्री में चले गए और आपको एग्जामिनर कहे कि ये पेरेंट्स है, इसका बच्चा है, उसको पेजेस हुए हैं, आप उससे हिस्ट्री ले लें। मैं उसके पास जाता हूँ, सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, वो वालेकुम सलाम, मेरा नाम डॉक्टर सादिक है, ठीक है, और आपका नाम, ठीक है, वो आपके बच्चे का नाम, तो कहेगा अली। अली की उम्र कितनी है भाई, 1 साल है। ठीक है, ओके, आज आप अपने बच्चे को अस्पताल किस मसले से लाए थे, वो कहेगा जनाब मेरे बच्चे को रात से पेचेस हुए। बस उसने ये बताए। ओके, आपको लोगों ने नोट किया है कि पेचेस के साथ साथ बच्चे ने रात से कोई उल्टी वगैरह तो नहीं, अगर उल्टियाँ की है तो उसको कोई बुखार तो नहीं था, बुखार चेक किया था, अगर चेक किया था उसको बुखार है, फीवर, डायरिया एंड वोमिटिंग, दैट इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस। फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। फिर बच्चे को क्या खिलाता जिसकी वजह से पेचस पड़े थे, वो कहते हैं कि जब दूध पिलाते हैं तो जनाब उसको पेचस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस।
اگر وہ کہتے ہیں کہ گندم والی کوئی چیز کھلاتے ہیں اور اس کے بعد ڈائریا ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ سیلیاک ڈیزیز. یا وہ کہتے ہیں کہ جناب بچہ ویسے ٹھیک ہوتا ہے لیکن کل سے اس نے کچھ ایسی چیز کھائی ہے کہ اس سے اس کو پیچس پڑ گئے، تو عام فوڈ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے. یہ دو تین چیزیں آپ لوگوں نے پوچھی نا، ذہن میں ایک چیز رکھ لی. اگر دودھ پلانے کے بعد اس کو ڈائریا ہوا ہے تو 99% چانس ہے کہ کیا ہے، لیکٹوز انٹولرنس ہے. بس سر آپ سے پوچھے گا کہ تم جو سوال پوچھ رہے ہو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. پھر آپ نے جناب اگر فار ایگزامپل اس کے ساتھ ماں آئی ہے، ماں، تو آپ نے پھر یہ چیزیں پوچھنی ہے. اگر وہ اس پیرنٹ کے ساتھ آئے ہے تو پھر یہ چیزوں نہیں پوچھنی ہے. باپ کے ساتھ یا فادر کے ساتھ پری نیٹل، نیٹل، پوسٹ نیٹل چیزیں نہیں پوچھنی. اگر ماں ہے تو اس سے ہم یہ چیزیں پوچھتے ہیں. اگر وہ فادر لے کے آئے ہے بچہ تو ہم کیا پوچھتے ہیں، امیونائزیشن ہسٹری پوچھتے ہیں. پھر اس کے بعد فیڈنگ، اس کو جو دودھ ہے وہ ماں نے پلائی تھی یا باہر سے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم پوچھ سکتے ہیں. پھر ڈائٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں. لیکن یہ جو برتھ ہسٹری ہے یہ اسپیشلی کس سے لی جاتی ہے، مدر سے لی جاتی ہے، یہ ہم فادر سے نہیں لیتے. ٹھیک ہے، تو دس وٹ جی نہیں، یہ لکھیں گے نہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنے ہیں. آپ ہسٹری لیں گے بس دو دو پوائنٹ اور آپ نے ذہن میں سوچنا ہے پھر کہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر آپ یہی تو پرنس آف مائنڈ کی بات ہے. اس ٹائم پھر جب آپ کو پروفیسر پوچھے کہ آپ کیا پوچھ رہے تھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ پوچھ رہے اس کے پیچھے لاجک ہے، ریزن ہے، تو تب جا کر وہ آپ کو تھوڑا پاس کرائے گا. ٹھیک ہے، تو دس واٹ آل اباؤٹ جنرل ہسٹری ٹیکنگ ان دا فیلڈ. اس میں کوئی کوشچن ہے؟ ہاں، یہ پیٹس کی ہسٹری ہے. پیٹس کی جو ہسٹری ہے اور میڈیکل کی ہسٹری، اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. لیکن مین جو ہے وہ ڈیڈیز ہے. ٹھیک ہے نا، ڈیڈیز. چلے فیور، اگر فیور کی ہسٹری آ جائے، بخار کی، تو آپ لوگ کیا پوچھیں گے، کب سے بخار ہے، بخار کے ساتھ بچے نے الٹیاں کی ہے کہ نہیں. اگر کی ہے تو جو بچہ ہے اس کی جو گردن ہے اس میں اکڑو ہے کہ نہیں، میننجائٹس. یہ کیا ہو سکتی ہے، میننجائٹس. فیور، vomiting and neck stiffness in a baby with fever is called of meningitis. اگر بخار ہے تو اس کے ساتھ بچے کو جھٹکے لگے ہیں کہ نہیں، that is fits. فیبرائل فٹس ہو سکتی ہے، فیبرائل سیزر اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بخار ہے اس کو کپ کپی وغیرہ ہے کہ نہیں، یہ ٹائیفائڈ، ملیریا وغیرہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر بخار ہے اس کے ساتھ ایبڈومن میں پین یا پیٹ میں درد وغیرہ تو نہیں ہے، یہ کوئی جی اے ٹی انفیکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وومٹنگ ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتی ہے. فیور کے بہت سے کاز ہے، تو آپ لوگ تین چار بھی بولیں گے آپ لوگ پاس کر دیں گے. ٹھیک ہے، بچے کے اندر ہسٹری میں صرف جناب آپ لوگوں نے دو چیزیں یاد رکھیں، یا تو فیور کی ہسٹری آتے ہیں، ٹھیک ہے، فیور، اور یا جناب وہ ڈائریا، ڈائریا کی ہسٹری. دیز ٹو آر ویری ویری کامن فار دا ہسٹری ٹیکنگ ان دا. تو فیور کی تین چار کاز یاد رکھے اور ڈائریا کے. اب اگر ایک بچہ ہے اس کو ڈائریا ہے اور آپ اس سے یہ پوچھیں کہ جناب وہ بچے کو جو پیچز پڑے تھے اس کو کانسٹیپیشن تھی کہ نہیں، یا پھر یہ چیزیں وہ پاس نہیں کریں گے. بچوں کے اندر جو کامن کاز ہے ڈائریا کے، وہ لیکٹوز انٹولرنس ہے، وہ فوڈ پوائزننگ ہے، سیلیاک ڈیزیز ہے، اور گیسٹرو اینٹیرائٹس ہے. بس یاد رکھیں. اور اگر ایگزامینر ایگزام میں پوچھے کہ ڈائریا کا موسٹ کامن کاز بچوں کے اندر کیا ہے، روٹا وائرس انفیکشن ہے. وہ کیا ہے، روٹا وائرس. تو روٹا وائرس از دا موسٹ کامن کاز آف ڈائریا ان بیبیز یا چلڈرن کے اندر روٹا وائرس ہے. کلیئر ہے؟ اوکے. پھر میں نے نوٹس بنائے ہیں، وہ آپ لوگوں کو نوٹس کی شکل میں ملے گی. دیکھیں ادر پاسبلٹیز کیا ہے فیڈس کے اندر. ادر پاسبلٹیز، ادر پاسبلٹیز یہ ہے فیڈس کے اندر کہ ہم کیا کریں گے. نمبر ون، آپ لوگوں کو نوٹس میں ملیں گے NRDS. یہ نام سنا ہے کہ نہیں، نیو نیٹل ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم. اس کا کہتے ہیں نیو نیٹل ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم. کل کے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ لنگس کے اندر دو طرح کے سیل ہے، نیموسائٹ ٹائپ 1، نیموسائٹ ٹائپ 2. یاد ہے کہ نہیں؟ نیموسائٹ ٹائپ 2 کا کام کیا ہے، اینی ون؟ اٹ ریلیز سرفیکٹنٹ، اور سرفیکٹنٹ کین پریونٹ دا لنگس فرام کولیپس. اور سرفیکٹنٹ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پریگنینسی میں کس ویک سے کس ویک تک بنتے ہیں، 26 سے 34. اگر 34 ویک سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو اس میں سرفیکٹنٹ کم بنے گی، تو اس بچے کو ریسپیریٹری ڈسٹریس ہوگا کہ نہیں. اس کو NRDS کہتے ہیں. NRDS is a condition which is seen in a baby whose birth is occurring before 34 weeks. اور اس میں کس چیز کی کمی ہوگی، سرفیکٹنٹ. تو اس میں لنگ میچور ہوں گے کہ امیچور، امیچور لنگ. ہم باہر سے بیٹا میتھاسون دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میتھاسون، اور سرفیکٹنٹ انفیوژن دیتے ہیں تاکہ ہم فیٹل لنگ کو کیا کریں، میچور کر سکیں. کلیئر ہے؟ یہ NRDS ہے. یہ میں آپ لوگوں کو کیس میں
PDF फॉर्म में सेंड करूंगा। फिर इसके बाद हाँ ओके कितने टाइम तक देते हैं, इट इज जस्ट गिवन फॉर फ्यू वीक, कुछ वीक, 2 वीक, 3 वीक के लिए, ताकि हम सरफेक्टेंट को इतना बढ़ा सके कि वो लंग्स को मैक्सिमली क्या करे, एक्सपांड करे। जब एक दफ़ा लंग एक्सपांड हो जाए, उसमें अपना प्रेशर बिल्ड हो जाए, तो फिर वो कोलैप्स तो नहीं होती। ठीक है, फिर इसमें आएगा कंजेनिटल हार्ट डिजीज। क्या चीज़? कंजेनिटल हार्ट डिजीज। इसका मतलब क्या है कि by birth there is a problem in the heart, a group of diseases which can affect heart by birth, that is called a congenital heart disease। देखिए अगर ये हार्ट है, हार्ट इज हाउ मेनी चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स। देखिए ये राइट एट्रियम है, दिस कॉल्ड ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल है, तो ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये राइट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। इसके दरमियान ये एक सेपरेशन है। अगर इस लाइन को मैं खत्म करूं तो फिर इसकी सेपरेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा स्ट्रक्चर हार्ट के अंदर जो एक केविटी को कितने में डिवाइड करे, तो इसको सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टम। तो अब ये सेप्टम एट्रिया के दरमियान है कि वेंट्रिकल, एट्रिया, तो इसका कहेंगे एट्रियल सेप्टम। क्या कहेंगे, एट्रियल सेप्टम। इसको क्या कहेंगे, वेंट्रिकल सेप्टम। तो सेप्टम के अंदर कोई डिफेक्ट या होल नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट एट्रियम की ब्लड किधर जाती है, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट की किधर जाती है, लेफ्ट। तो अगर राइट से लेफ्ट में ब्लड जाए या लेफ्ट से राइट में आ जाए, इसका मतलब इस सेप्टम में कोई सुराख है या डिफेक्ट है, या इस सेप्टम में कोई सुराख है। तो ये सुराख नॉर्मल है कि नॉर्मल है। हम कहते हैं कि फलाने बच्चे के बाई बर्थ दिल में सुराख है। सुराख का मतलब इस सेप्टम के अंदर होल है। अगर इस सेप्टम में होल आ जाए तो इसको कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ASD। क्या कहेंगे, PSD, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर 98% बच्चों में क्या होता है, VSD, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज, दैट इज कॉल्ड VSD। अब अगर VSD, इसका जो टेस्ट है वो इको है। क्या है, इको। हम इको करते हैं, इको विल टेल अस द साइज ऑफ दिस होल। अगर होल का साइज कम है तो फिर बच्चे को एज के साथ साथ ये खुद बहुत क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन अगर साइज जो है ना इसका बड़ा है तो उसको हम ओपन हार्ट सर्जरी करके रिपेयर करते हैं। लेकिन डिफेक्ट क्या है, ASD हो चाहे VSD हो, दोनों के अंदर ऑप्शन है सर्जरी। क्या है, सर्जरी है। लेकिन ये एग्जामिनर वाइवा में पूछता है, if VSD size is small, what your option will be? Answer is spontaneously resolve, ये खुद बहुत रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर लार्जर VSD है तो उसको हम फिर सर्जिकली करेक्ट कर देते हैं। बात क्लियर है? तो सर्जिकल करेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर लार्जर VSD, बट स्मॉलर VSD समटाइम्स स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व, वो खुद बहुत ठीक हो जाता है। अब ये जनाब कंजेनिटल हार्ट डिजीज, तो इसमें VSD आ सकता है, PSD बहुत कम आता है। लेकिन इसका मैं आप लोगों को एग्जामिनर क्वेश्चन दूंगा। इसमें अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वो कहेगा कि बच्चे में होलोसिस्टोलिक मर्मर है। क्या है, होलोसिस्टोलिक मर्मर मीन एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ठीक है, हार्ट के अंदर 2 तरह की फेज है, कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट इज सिस्टोल, रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज डायस्टोल। ठीक है, VSD के अंदर, हार्ट के अंदर जो एबनॉर्मल साउंड है वो किस फेज के अंदर होता है, सिस्टोल में। तो थ्रू द सिस्टोल अगर एक मर्मर आ जाए तो क्या कहते हैं, होलोसिस्टोलिक मर्मर। तो अगर एक बच्चा है, उसका उम्र 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, वो पेरेंट्स से क्या है कि ये कुछ खाता भी नहीं है, उसका वजन भी कम होता जा रहा है, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट ने कौन सा मर्मर सुन लिया, होलोसिस्टोलिक मर्मर। इट्स मीन द बेबी हैज VSD। फिर इको करते हैं, अगर VSD की साइज कम है वो खुद बहुत भी ठीक हो सकती है, अगर VSD की साइज ज्यादा है तो उसको हम सर्जिकली करेक्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट केस दे आस्क इन द एग्जाम, दैट इज कॉल्ड फेब्राइल सीजर। ये नाम सुना है कि नहीं? तो फेब्राइल सीजर, फेब्राइल सीजर भी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो फेब्राइल सीजर, तो हिस्ट्री में फीवर या डायरिया होता है, और यहाँ पे NRDS, कंजेनिटल हार्ट डिजीज और फेब्राइल सीजर। तो अगर आप ये 4-5 चीजें याद करें तो आप लोग का पीट का सेशन क्लियर हो जाता है। अब चाहे हिस्ट्री जो भी दे दे, लेकिन फॉर्मेट आप लोगों ने यही रखनी है। ठीक है, इसके बाद NRDS की जो केस है वो VSD की केस और फेब्रल सीजर, ये PDF में आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब उसके साथ मैंने केस लिखा होगा और नीचे इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है और मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेगा, बस आगे पीछे कर सकते, कोई इशू नहीं। जरूर नहीं है कि जो फॉर्मेट मतलब
इम्यूनाइजेशन बाद में पूछिए, पहले पूछिए। लेकिन ये है कि आप लोग भूले ना, जो हेडिंग्स है वो एटलीस्ट पूछने हैं, हेडिंग्स को बस कवर करना है हमने, ठीक है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट फॉर दी बीट्स। अब देखें, दो चीजें हैं। हमने एक बात की थी लास्ट टाइम, हम पढ़ेंगे सीपीआर का नाम सुना है कि नहीं? सीपीआर स्टैंड फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ये फर्स्ट एड का हिस्सा है। फर्स्ट एड से मुराद यह है कि अगर एक बंदा इमरजेंसी में है, वट एवर वी डू फॉर द पेशेंट इनिशियली बिफोर हॉस्पिटल रीच, दैट इज कॉल्ड ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के अंदर एक चीज क्या है? सीपीआर है। देखिए मैं आप लोगों को इसका एक तरीका बताता हूँ। अगर एक पेशेंट है, वो गिर गया या वो एक्सीडेंट में लग गया या जाते जाते गिर गया, और उस पेशेंट के पास आप गए, फॉर एग्जाम्पल आप पेशेंट के पास गए और पेशेंट बिल्कुल इस तरह पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो आप पेशेंट के नियर बाई इंजरी देखें, कहीं पे इंजरी वगैरह उस पेशेंट को कहाँ पे हुई है। अगर इंजरी वगैरह देखकर आपको कहे कि यार पेशेंट ठीक है, फिर आप जाकर अपनी कान को पेशेंट के माउथ के साथ लगाए कि इसकी ब्रीदिंग है कि नहीं। ब्रीदिंग के बाद आप चेस्ट एक्सपांशन देखें कि चेस्ट एक्सपांड हो रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट की चेस्ट एक्सपांशन मिनिमल है और इसकी ब्रीदिंग आप सही तरीके से नहीं सुन रहे, और पेशेंट को आपने आवाज़ दी कि हेलो हेलो, और वो आपको जो है ना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इट्स मीन द पेशेंट इज इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी। वो किस में है? इमरजेंसी में है। तो फिर आपने क्या स्टार्ट करना है? सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर का तरीका ये है कि जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, आप लोगों का लेफ्ट है, आपका नॉन डोमिनेंट हैंड लेफ्ट है और मेरा राइट है, आपने वो चेस्ट पे रखना है। कहाँ पे रखना है? चेस्ट पे। इस तरह हॉरिजॉन्टल में, इस तरह वर्टिकल रखना है। वर्टिकल चेस्ट पे रखना है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है? दूसरा हाथ उस पे इस तरह ग्रैब करना है, इस तरह। कुछ लोग ऐसे भी रखते हैं, कुछ लोग ग्रैब करते हैं। ग्रैब करते और मतलब चेस्ट को दबाना है तकरीबन 1.5 इंच से लेकर 2 इंचेस तक। कितने इंचेस तक? 2 इंचेस। लेकिन 1.5 इंचेस आपने इसको दबाना है और छोड़ना है, दबाना है और छोड़ना है। अब आपने जब 30 कंप्रेशन की है, कितनी? 30 दफा आपने पुश की है, तो फिर आप 30 कंप्रेशन के बाद माउथ टू माउथ ब्रेथ देंगे। क्या देंगे? माउथ टू माउथ, ठीक है। मतलब आप पेशेंट की माउथ में माउथ रखें और उसको ब्रेथ दे, और उसकी चेस्ट क्या हो जाएंगे? एक्सपांड हो जाएंगे। फिर आप 30 कंप्रेशन करेंगे, फिर माउथ टू माउथ ब्रेथ देंगे। तब तक करेंगे जब तक पेशेंट की कॉन्शियसनेस को हम रिगेन ना करें। बात समझ गए कि नहीं? हाँ। लेकिन एयरवे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है एयरवे क्लियरेंस के लिए, तो आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। पेशेंट को आपने देखा वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है, वो बात भी नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड भी नहीं दे रहा, यू हैव टू कॉल 911। मतलब ये इमरजेंसी कॉल करे, एम्बुलेंस वगैरह। जब तक वो आता रहेगा तो आप सीपीआर करते रहे। तब तक करेंगे जब तक पेशेंट की कॉन्शियसनेस रिगेन ना हो जाए। अब सीपीआर हम उन पेशेंट में करते हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हो चुका हो, अब हार्ट ने काम करना छोड़ दिया है। अब आप जो सीपीआर कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है? इससे बंदा क्यों कॉन्शियस होता है? अब देखे, अभी इस टाइम पे जो हार्ट ने पंपिंग की है, ब्लड तो निकला है ना, और अभी हार्ट ने काम करना छोड़ दिया। अब जब हार्ट काम करना छोड़ देता है, कुछ ब्लड तो आगे निकला है कि नहीं? अब वो ब्लड वेसल में है, लेकिन कहाँ तक नहीं जा सकता? ब्रेन तक, क्योंकि फर्दर पंपिंग नहीं है। तो जो सीपीआर हम करते हैं, हमारा उसमें टारगेट ये है कि जो इजेक्टेड ब्लड है और वेसल में रह गई है, उसको कहाँ तक पहुंचाना? ब्रेन तक पहुंचाना। और ब्रेन को अगर हम ग्लूकोज ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे तो पेशेंट की कॉन्शियसनेस दोबारा आ जाती है। क्लियर है? तो जो इजेक्टेड ब्लड है, इससे हम हार्ट की पंपिंग नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो ऑलरेडी ब्लड निकल चुका है, वेसल में है, उसको कहाँ तक पहुंचाना? वाइटल आर्गन तक पहुंचाना, स्पेशली ब्रेन तक पहुंचाना। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड सीपीआर। सीपीआर की जो कंप्रेशन है, ये 100 होने चाहिए 1 मिनट में। कितने? 101 मिनट। लेकिन हर 30 कंप्रेशन के बाद हम माउथ टू माउथ ब्रेथ देते हैं। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? ओके। ये तो था सीपीआर एंड एडल्ट, जिसका एज 12 साल या 10 साल से आगे हो। कभी कभार छोटे बच्चे होते हैं, उसको सीपीआर कराना होता है, वही सेम है। बच्चे के पास गए, बच्चे को आपने देखा, बच्चा बिल्कुल क्या है? कूल एंड काम है, अनकॉन्शियस है। उसके साथ हाथ लगाया या इसके साथ कान लगाया, आपको कोई ब्रीदिंग नहीं सुन रहा या आप फील नहीं कर रहे, और इसकी जिस मूवमेंट भी बहुत क्या है? कम है, ना होने के बराबर। बच्चे को हिलाए कि हेलो हेलो, मतलब अगर वो कुछ रिस्पॉन्ड ना करे, हाथ पैर ना हिलाए, इसका मतलब बच्चा किस में चला गया है? अनकॉन्शियसनेस में। तो फिर ऐसा करे, ये जो इंडेक्स और मिडल फिंगर है, इन फिंगर को आपने स्टर्नम पे रखना है और स्टर्नम पे प्रेस करना है, ठीक है। पूरा हाथ नहीं रखना है, क्योंकि बच्चे की जो रिब्स है दे आर इमेच्योर। अगर हम पूरा हाथ रखेंगे तो उससे रिब फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम ये 2 उंगलियां रखते हैं, 2,
और इसको दबाते इस तरह, इसको दबाते जब 30 टाइम उसको आप दबाएं, कंप्रेशन करें, आपने ये गिनना है 1 2 3 4 5, जब 30 हो जाए तो फिर जाकर माउथ टू माउथ ब्रेथ देंगे। तो इसमें हम पूरा पाम ऑफ द हैंड रखते हैं एडल्ट के अंदर, बच्चों के अंदर ये 2 फिंगर रखते हैं। क्लियर है? क्योंकि उनकी जो चेस्ट है वो इमेच्योर होती है और इसकी जो रिब है उसमें फ्रैक्चर की चांसेस भी ज्यादा होती है। हाँ, ओके। एक तो ये है, ये ओस्की का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है ये है। क्लियर है? मतलब 2 फिंगर से। लेकिन अगर आप बच्चे की चेस्ट को ग्रैब करें इस तरह दोनों साइड से, ठीक है, और ये जो 2 फिंगर है ना, 2, फॉर एग्जाम्पल ये थंब और ये, इसको एक थंब को रखते हैं और दूसरे इसके ऊपर रखते हैं और इसको भी क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। दैट इज अनदर टेक्निक टू डू सीपीआर इन द बेबी। अब ये चेस्ट है, आपने दोनों साइड से चेस्ट पकड़ा और आपका थंब फ्रंट पे आ गया और दूसरा थंब उस पे रख के क्या करते रहे, सीपीआर करते रहे। लेकिन इसमें पूरा हाथ आप नहीं रख सकते क्योंकि इसमें रिब फ्रैक्चर की चांसेस ज्यादा होती है। क्लियर है? या तो 2 उंगली इस तरह रखे, 2 उंगलियों से डायरेक्ट करते रहेंगे, या फॉर एग्जाम्पल एक थंब रखे और उस पर दूसरा जो है ना दबाते रहे। दोनों कंडीशन में हम बच्चों के अंदर क्या करते हैं, सीपीआर करते हैं। क्लियर? ओके। एक आप लोगों को आना चाहिए वाइवा के लिए, व्हाट इज मेंट बाय हेलमेट मैनुअर, ये एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। हेलमेट मैनुअर ये क्या चीज है, मैनुअर, हेलमेट मैनुअर। ये हेलमेट मैनुअर में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कोई चीज जाकर फंस जाए, उसको निकालने का तरीका जो है उसको क्या कहते हैं, हेलमेट मैनुअर। वो आपको बताएंगे कि आपके साथ एक दोस्त था, वो रेस्टोरेंट में बैठे बैठाए आप दोनों मतलब नगेट्स वगैरह या कुछ चीज खा रहे थे, लेकिन गलती से उसका वो फंस गया। अब वो डिस्कस में क्या करेंगे, जिस बंदे का रेस्पिरेटरी ट्रैक में फॉरेन बॉडी फंस गई है, इसका पीछे जाए, बैक साइड पे जाकर इसको ग्रैब करे, ठीक है, ग्रैब यहाँ पे, और उसको एक तरस दे दे, तरस देंगे और उसको नीचे देंगे। जब वो 2-3 तरस देंगे वो नीचे, तो वो अपनी जो है ना फॉरेन बॉडी, कि हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को यहाँ से स्क्वीज कर दे ताकि फॉरेन बॉडी बाहर निकले। दिस टाइप ऑफ मैनुअर इज कॉल्ड ऑफ हेलमेट मैनुअर। तो हेलमेट मैनुअर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा है उसका कोई चीज फंस गया, उसको तो आप ग्रैब नहीं कर सकते, बच्चे को हाथ पे रखे ऐसे, मतलब इस तरह रखे उल्टा, और इसका जो बैक साइड है ये, इसको इस तरह मतलब मारते रहे। ये साइड मारेंगे तो इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो फॉरेन बॉडी है वो नीचे जाएगी। लेकिन बच्चे को आप हाथ पे रखेंगे इस तरह नहीं, सीधा, वो सीधा नहीं, उल्टा रखेंगे, और इतना इसका जो ये वाला चिन्ह है ना, कि अपने हाथ के साथ रखे ताकि इसका मुंह नीचे लटका रहे, ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो फॉरेन बॉडी है वो आसानी से जाए। हम ऐसे बच्चे को पकड़ते हैं हाथ में और इसकी जो बैक है उस पर हम थोड़ा सा तरस लगाते हैं। ये भी कौन सा मैनुअर है, हेलमेट मैनुअर। हेलमेट मैनुअर बच्चों और बड़ों में दोनों के अंदर इसलिए की जाती है to remove the obstructed foreign body from respiratory tract. Clear? So this what all about the kids. हाँ, एडल्ट से ओके। अगर कोई सिक्का फंस जाए और वो एसोफेगस वगैरह में हो या ट्रेकिया के अंदर हो, लेकिन इससे वो ना हो सके, दिस इज द फर्स्ट एड। अब बैठे बैठाए घर में रात को या बैठे बैठाए रेस्टोरेंट पे किसी फ्रेंड के साथ ये हो जाए, उस टाइम हमारे पास में कैथेटर होता है, नलेरिंगोस्कोप होता है, ये फर्स्ट एड है, इससे आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ये ट्राई करें लेकिन वो हो ना पाए तो फिर हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, एम्बुलेंस कॉल करते हैं और वो आकर उस ईटीटी ट्यूब के जरिए उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ईटीटी ट्यूब के अंदर जो बैलून साइड है उससे उसको हम पकड़ते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस लोग कर सकते हैं, हर एक बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ जी, वही ना, अगर स्टमक में फॉरेन बॉडी चली जाए तो स्टूल के जरिए निकल सकती है, वो कोई नहीं, क्योंकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो बहुत बड़ी है, मतलब इट कैन एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनल म्यूकोजा। लेकिन अगर फॉरेन बॉडी शार्प है, उसकी एजेस शार्प है, तो एनल टीयरिंग करा सकती है। जब ये स्टूल में निकलेगा तो जो एनल म्यूकोजा है उसके अंदर ये टीयरिंग करा सकती है, लिसरेशन करा सकती है, तो उससे डिफिकेशन के दौरान फिर पेन हो सकती है। लेकिन यह कि यूजुअली जितनी भी फॉरेन बॉडी है, अब एक और क्वेश्चन आता है ओस्की के अंदर, एक बंदे की फॉरेन बॉडी फंस गई है, वो हॉस्पिटल आया, आपको एज अ डॉक्टर कैसे पता चलेगा कि ये एसोफेगस में है या ट्रेकिया में है? अगर वो बंदा आपके साथ बात करता है और वो रिलैक्स है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे बस कोई चीज फंस गई है, आप कुछ करें, लेकिन वो सांस सही ले रहा है, ये एसोफेगस के अंदर है। अगर फॉरेन बॉडी यहाँ पे फंस गई है लेकिन बंदे की कलर ब्लू हो गई है और वो बिल्कुल जो है ना बात तक नहीं कर सकता, मतलब डिस्ट्रेस में है, तो फिर ये लेरिंग्स या ट्रेकिया के अंदर है, ये ट्रेकिया के अंदर है।
اس لیے یاد رکھیں. پھر لیرنگوسکوپ استعمال کرتے ہیں اور لیرنگوسکوپ گیڈٹ اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ریموو کرتے ہیں. آپ اس کو 3-4 کیلے بتائیں کہ یہ کھائیں جلدی جلدی. وہ کیلے کھائیں گے تو کیلا سالڈ چیز ہے نا, تو جو سالڈ کیلا وہ کھائے گا وہ اس پہ کمپریشن افیکٹ ڈالے گا اور وہ سفید سے کدھر چلی جائے گی, اسٹمک میں. اسٹمک سے پھر اسٹول کے ذریعے باہر نکلے. تو دیز آر جو ہم فارن باڈی کو ریموول کے لیے اسپیشلی بڑوں کے اندر جو بیک سائڈ پہ جا کر اس کو ترس لگاتے ہیں تاکہ اس سے فارن باڈی نکالے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہیلمیٹ میں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اور کوشچن ہے؟ دس واٹ آل اباؤٹ فار دا پیڈس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, آپ لوگوں کو PDF میں اس کے کوشچن مل جائیں گے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آج ہمارے کچھ ایکس رے رہتے ہیں, وہ ایکس رے کریں گے تو پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے.